Hello friends, welcome to Panesha Tutor. Hope everyone is doing good. Friends, in this video, I will discuss about the recently debated topic, that is Taliban rise in Afghanistan and its impact on the world, and specifically its impact on India. Friends, in this video, I will discuss about what is Taliban, what its ideology, historical background of Taliban and Afghanistan, American attack on Afghanistan, what are the reasons of its attack, and finally American eviction from Afghanistan. And we will also discuss its impact on world and specifically India. So friends, to know all this, please watch till end of the video. Generally in UPSC, they will definitely ask about the security aspect related to India, how it is dangerous for Indian security. तो इस पॉइंट से डेफिनेटली यूपीएससी में सवाल पूछेंगे. For online video course or live interactive classes, join PanesiaTutor.com. We provide coaching for different competitive exams such as UGC NET JRF, SSC exams, bank exams, and various other state and central level government job exams. We also provide coaching for various UG and PG based admission entrance tests. We provide complete quality video lectures, PDF notes, MCQs, and online mock test series. We also provide Zoom interactive online classes. For more information, visit PanesiaTutor.com, or you can also see our demo lectures or demo videos on our YouTube channel. Friends, before going about Taliban, we must know about the position of Afghanistan. अफगानिस्तान वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? अफगानिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है और इसका लगभग जो टोटल एरिया है 6,52,864 स्क्वायर किलोमीटर है. एंड इट्स नेबर आर पाकिस्तान इज बॉर्डरिंग ईस्ट साइड एंड साउथ साइड. ईरान इज टू द वेस्ट. तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान इज नॉर्थ एंड चाइना इज नॉर्थ ईस्ट. बेसिकली अफगानिस्तान इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री. अगर आप इसके पॉपुलेशन पे जाओ तो आप देखोगे 2020 का जो एस्टिमेट था अराउंड 3,13,90,200 इसकी पॉपुलेशन थी. आउट ऑफ दिस 42% पश्तून हैं, 27% ताजिक हैं, 9% हज़ारा हैं, 9% उज़्बेक हैं, 4% एमाक हैं, 3% तुर्कमान हैं, 2% बलोच हैं एंड 4% अदर्स हैं. तो ये पॉपुलेशन डिवीज़न है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अफगानिस्तान ऑलवेज रिमेन वॉलेटाइल. हमेशा से वॉलेटाइल ही रहा है. अगर हम स्पेसिफिकली तालिबान का दौर देखें तो रीज़न फॉर तालिबान राइज वाज सोवियत अटैक ऑन अफगानिस्तान. वे बैक इन 1980s टू कंट्रोल अफगानिस्तान सोवियत यूनियन ने टैंक उतार दिए थे एंड इसी रिस्पॉन्स में तालिबान राइज हुआ और ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ अमेरिका. अगर आप स्पेसिफिकली देखो तो मुल्ला मोहम्मद उमर, a member of Pashtun tribe who became Mujahideen commander that helped push Soviet Union out of Afghanistan in way back 1989. In 1994, Umar founded Taliban. Taliban, its literally mean is student. Basically, the followers of Umar were called Taliban and hence its name became Taliban. After eviction of Soviet Union, there was a widespread corruption in the Afghanistan government, and to suppress this, Taliban started capturing territory by territory, and finally in 1996 they captured Kabul and established their rule in Afghanistan. During their rule, Taliban imposed Talibani ideology that is based on Sharia Qanun. Taliban imposed all Islamic rules there. उन्होंने they banned television, they banned music, they barred girls from going to schools and forced women to wear head to toe covering called burqa. This was the harsh rule of Taliban. And आप कह सकते हैं कि तालिबान का रूल बच्चों औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा बदतर रहा. तालिबान का जो रूल था 1996 to 2001, जब तक अमेरिका ने इसे गिराया नहीं, they offered sanctuary for all terrorist organizations world over. चाहे वो चेचन्या से आए, फिलीपाइंस से आए और ऑफ कोर्स अलकायदा को भी इन्होंने शरण दी. उसी अलकायदा के ओसामा बिन लादेन ने ही हेज प्लान
फॉर अटैकिंग ट्विन टावर्स ऑफ अमेरिका 9/11 2001। इस साल इसके 20 साल पूरे होने लगे हैं और आप देखो कि अमेरिका पीछे हट गया। तो द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई अमेरिका actually attacked? The reason was that when Osama bin Laden had planned to blast off trade towers and Capitol Hills and Pentagon, America demanded Osama bin Laden from Taliban, but Taliban refused. Then finally America attacked. Within 2 months Taliban fell down. Some took shelter in neighboring Pakistan. उसके बाद से तालिबान को ख़त्म करने में अमेरिका ने अपना जोर लगा दिया और फिर हामिद करजई की इंटरिम गवर्नमेंट बनाई इन 2004 में। हामिद करजई की गवर्नमेंट 2004 से लेकर 2014 तक एक इंटरिम सरकार बनाई। फाइनली अंडर द लीडरशिप ऑफ हामिद करजई, अफगानिस्तान वाज डिक्लेयर्ड एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। एंड इन सितंबर 2014 अशरफ गानी बिकेम ड्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, जो अभी अपने देश छोड़कर भाग गए। सिंस 2001 अमेरिका ने अपना बहुत पैसा, बहुत सारे फौजी गवा दिए और फिर भी तालिबान को वो कंट्रोल नहीं कर पाया। अब अमेरिका को 20 इयर्स होने लगे हैं, तो अमेरिका वांटेड टू विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान, इसलिए वो अलग अलग तरह से कोशिश करने लगा। फाइनली जब उसकी बात नहीं बनी, तालिबान केप्ट ऑन इंक्रीजिंग इट्स अटैक, तो अमेरिका ने फाइनली तालिबानियों से बात करना शुरू किया। तालिबानियों से बातचीत चल रही थी तो फाइनली जो न्यू प्रेसिडेंट अमेरिका के आए, जो बाइडेन, इमीडिएटली इन्होंने अमेरिकन फोर्सेस को निकाल लिया, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो गई और तालिबान का जो मनोबल था वो बहुत हाई था। एंड तालिबान वाज ऑफ कोर्स वाज सपोर्टेड बाय ईरान, बिकॉज अमेरिका का ईरान से झगड़ा चलता था। ईरान, पाकिस्तान, चाइना, ये तीनों देश नहीं चाहते थे कि अमेरिका अफगानिस्तान में कामयाब हो, जिसकी वजह से इन्होंने हथियारों से, पैसों से, किसी ना किसी तरह से तालिबान की मदद करते रहे। अब तालिबान ने काबुल पे कब्जा कर लिया है तो अगेन जो डर था वो वापस आ गया है तालिबानी रूल का। क्यों? और ये डर ज़्यादा सताने लगा है फीमेल्स को, बच्चों को, क्योंकि तालिबान का रूल इनके लिए ही बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, क्योंकि तालिबान शरिया कानून लगाता है और इवन जो वहाँ के मेल हैं उनके लिए भी बड़ा ब्रूटल रहा है। उनको 5 टाइम नमाज पढ़ना है, जो फीमेल्स हैं बुरके में रहेंगी, जो लड़कियां हैं वो पढ़ नहीं सकती। ये ब्रूटल रूल जो है अब वापस लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। इस सिचुएशन में अब आगे क्या होगा ये सोच के लोहा के लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, नेबरिंग कंट्रीज में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह से लोग जबरदस्ती हवाई जहाज़ों पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कई तो प्लेन्स के जो विंग्स होता है उस पर बैठ गए और जब हवाई जहाज़ जब आसमान में पहुंचा तो बिकॉज ऑफ जर्क हवा, तेज हवा की वजह से वो ऐसे आसमान से नीचे गिर रहे थे जैसे पत्थर हो। अब इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, क्या वहाँ की जो मिलिट्री थी अफगानिस्तान में, इतने सालों से जो ट्रेन की थी अमेरिका ने, वो ऐमे ही उसने हथियार डाल दिए? क्या उन्होंने फाइट नहीं की? किसी तरह का उन्होंने रेजिस्टेंस नहीं दिया? तो आप देखो, अगर स्ट्रॉन्ग 3 लाख के करीब कही जाती है अफगानिस्तान की मिलिट्री थी, लेकिन वो मैक्सिमम जो थे उसमें करप्शन बहुत था, देशभक्ति की कमी थी और कई कहते हैं कि उनको सैलरी नहीं मिल रही थी और जो डर हो गया था, डर का माहौल बन गया था कि तालिबान आ रहा है, तालिबान डेफिनेटली आएगा। उधर से अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का भी बयान आ गया था कि डेफिनेटली 3 महीने के अंदर काबुल पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी, इन सभी ने असर डाला अफगानिस्तानी फोर्सेस पर। उनको लगा कि वो अमेरिका के बिना हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तालिबान को। और जब अमेरिका जो इतनी बड़ी पावर है इतने सालों से कंट्रोल नहीं कर पाया, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और भी कई फैक्टर हैं जो पड़ोसी हैं अफगानिस्तान के, जो घानी थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे थे पाकिस्तान पे कि वे सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को ट्रेन कर रहे हैं, तालिबान को नर्चर कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है पड़ोसियों से मदद जो तालिबान को मिल रही थी और अफगानिस्तान को ये मदद नहीं मिल रही थी। अगर आप देखो इम्पैक्ट ऑफ तालिबान ऑन वर्ल्ड अफेयर्स और वर्ल्ड स्टेज पर, तो सेंट्रल एशिया डिस्टर्ब हो जाएगा। अफगानिस्तान के पड़ोसियों ने, इवन पाकिस्तान ने भी अपने बॉर्डर को सीज कर दिया है। इवन अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उधर उज्बेकिस्तान, उधर ताजिकिस्तान ने भी अपने बॉर्डर सीज करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि ईरान, पाकिस्तान और चाइना ने ये कहा है कि हम
अफगानिस्तान के जो नए रूलर होंगे यानी कि तालिबान, उनसे अपने फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करेंगे। इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि तालिबान के राइज से जो स्लेवरी के जंजीरें थी वो टूट गई। अब अगर आप वर्ल्ड स्टेज पर देखो तो डेफिनेटली टेररिज्म तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने अटैक तालिबान पे किया ही इसीलिए था, आतंकवाद की वजह से, क्योंकि अफगानिस्तान में कई आतंकवादियों का शरण था, तालिबान उनको पनाहगाह प्रोवाइड कर रहा था। तो सेंट्रल एशिया में जो शांति बन रही थी अमेरिका के प्रेजेंट होने से, अब वो जा रही है। दूसरा, नशा। अफगानिस्तान में नशा, ओपियम बहुत होता है और अब ये नशे का कारोबार और बढ़ेगा। क्यों? तालिबान के राइज होने से तालिबान इस नशे को जरूर बेचेगा और उसी से पैसे कमाएगा। अगर आप इसका इम्पैक्ट इंडिया पे देखो तो इंडिया पे भी इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। नशा का तो कारोबार इंडिया में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा, अगर आप इतिहास में जाके देखो तो जब सोवियत यूनियन भागा यहाँ से अफगानिस्तान से, तो जो उसके हथियार थे वो तालिबानियों के पास आ गए और उस हथियार का इस्तेमाल इवन कश्मीर में भी किया गया। और अब तो अमेरिकन वेपन, अमेरिकन जितने डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं अब तालिबानियों के हाथ में हैं और डेफिनेटली ये चैनलाइज होगा कश्मीर के ऊपर। तो इंडिया इस पॉइंट से भी इंडिया को सतर्क रहना होगा। और इंडिया जो प्लान बना रहा था एनर्जी सिक्योरिटी का, जो ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया जो पाइपलाइन था, वो भी अब खतरे में पड़ जाएगा। प्लस आपके पड़ोस में डिस्टर्बेंस रहेगी तो फिर क्या होगा? वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। अगर आप देखो तो इंडियन प्लेन एक हाईजैक हो गया था, ऐसे भी खतरे बढ़ जाएंगे जिसके लिए इंडिया को तैयार रहना होगा। और जब अफगानिस्तान में चाइना का और पाकिस्तान का ज़्यादा इंटरफेरेंस रहेगा तो फिर इंडिया उससे बाहर रहेगा और ये तीनों इंडिया पर मिलकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं चोट पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ा जाए, अगर आप सोचो कि पाकिस्तान और चाइना बच जाएंगे तालिबान के इस खूंखार रवैये से, तो ऐसा नहीं है। तालिबान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं तहरीके तालिबान से, जो कि पाकिस्तान का दुश्मन है। और उधर तालिबान के रिलेशन जो हैं वो उइघुर मुसलमान जो जिंगजियांग प्रोविंस में रहते हैं चाइना के, उनके साथ भी रिलेशन होंगे। और डेफिनेटली क्योंकि चाइना ने इस जिंगजियांग प्रोविंसेस में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है तो उन पर भी असर होगा। अगर आप देखो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है अराउंड 2 बिलियन के करीब है, जो एसेट इंडिया ने बनाया है, चाहे वो सलमा डैम हो, चाहे वो दिलाराम जरांज रोड हाईवे हो, वहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई हो, तो ये एसेट अब हो सकता है तालिबान इसका इस्तेमाल करे, हो सकता है तालिबान इसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो इंडिया अभी भी तालिबान को रिकग्नाइज तो नहीं किया है, लेकिन वेट एंड वॉच के स्टेज पर है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आती रहे। फ्रेंड्स, you can also contact us through WhatsApp or through email ID. Thank you, friends.